Hello everyone, welcome in this session on Power 9 Anushthan. We will talk about Navratri and importance and the Sankalpa. Today is day 0, Sankalp day. So I'm just sharing my screen. Give me a minute. So this is basically day 1 or maybe day 0. We can call it Sankalpa day. And here this is an effort to gain energy for next 6 months. This is little introduction about ourselves. This will be a methodology, three-phase methodology we will follow during this Anushthan period. Sankalpa is day 0, then daily Swadhyay, and then last day will be Purnavati. The left-hand side picture is picture from Rishikesh from last year, 8 to 15 December, near Ganga Nadi ka Kinara. And this is the agenda of day 0. Importance of Navratri, special note, different level of Anushthan, modified, and various precautions during each level of Anushthan and closing prayer. So, as per our scriptures, Anushthan requires a huge amount of energy, time, and efforts. Like 27 mala, mantra, rosary. So, it takes around 3 hours. But in today's busy world, everybody is not having that luxury or feasibility to just invest 3 hours. So we have modified this Anushthan to different 4 levels. Let us see. First of all, importance of Navratri ka. What is Navratri? So these Navratri 9 nights are specially designed and are a very auspicious, valuable time period when interplanetary motions of different planets, Sun, Earth, Moon, are in this position that whenever we are having any sankalpa, like for mind power, for gaining some energy, this period is very propitious. So during this, if you take any sankalpa, maybe little, small or big, the chances of it getting completion is very high. If you want to gain energy for next 6 months, that is also going to happen a lot. So this Navratri is basically a earning period. What is earning? In this world, we think only money is earning. But how money comes? Money comes from your endeavor, your efforts, your intention-filled actions. So, but how that will happen? When there will be energy diverted to the right path. And that energy is something which will actually, in turn, provide you enough money, enough resources, enough happiness. So, for every individual, it is recommended as per Indian Sanskriti, Bharatiya Sanskriti, that we should gain energy during this auspicious 9 days, Navaratri. And that's why our rishis, who were scientists, they have devised this Navaratri as is very specific because everybody will not understand the science behind this Navaratri. So they have made this as a practice in India that these 9 Ratris, 9 days, people will follow abstinence. They will follow the restraint. They will follow some parhez, and they will have fasting. They will have chanting, some spiritual practices, so that they gain more and more energy during this 9 days period. So Navratri should not be missed. Yeah,
But if you are not having leaves, if you are not having enough time from your work, home, life, so how you can leverage this spacious period? That is agenda. आज की मीटिंग का यही एजेंडा. Let's go to the next. Now this is various levels of Anushthan and precautions. Level 1 to 3 is micro Anushthan and level 4 is mini Anushthan. Plus Ajapa Jap we are going to explain. So level 1 is requiring only 15 minutes per day. Level 2 is requiring 60 minutes. Level 3 is again 120 minutes, little bigger. Level 4 is the real Anushthan, which we call as per our scriptures Laghu Anusthana, which is being mentioned by a guy. My mentor, Himalayan Rishi, Pandit Sri Ram Sharma Acharya, I think is a very big scientist of spirituality, and he's written more than 3,000 books on various facets of the life. We will read, we will have summary of all those in the next part of the year. So level 1, what we have to do in the level 1 is like all the days we have divided in two parts. First part is God touch. Second part is self touch. So इसमें क्या करना है हमें? उपासना. पहला पार्ट उपासना है, सेकंड पार्ट साधना है. उपासना में कुछ चैंटिंग करनी है. चैंटिंग जिनको नहीं कंफर्टेबल है तो वो मंत्रा राइटिंग कर लें. जो राइटिंग भी नहीं कर सकते हैं वो चालीसा पढ़ लें. और वो भी अगर नहीं कर सकते हैं, मे बी हिंदू रिलीजन से नहीं है, दे स्टिल वांट टू डू द गेन दिस अनुष्ठान बेनिफिट, सो वो लोग क्या कर सकते हैं? उज्जवल भविष्य की कामना, यानी कि एक डायरी ले. उस डायरी में अपने लिए शुभ 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 जो जो चीजें चाहिए वो लिखे, चिट्ठी लिखे. दैट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ चैंटिंग, राइट? सो लेवल 1 बहुत आसान है. आपको 5 मिनट्स या तो चैंट करना है, या 5 मिनट्स आपको मंत्रा राइटिंग करनी है, या 5 मिनट अपने सेल्फ जो भी अपने भले के लिए अपना एडवोकेट बन के अपने लिए अच्छी अच्छी चीजें लिखनी है. द गुड विशेज फॉर यू ऑन द पेपर. आई थिंक उज्जवल भविष्य की कामना. और कैसे लिखेंगे उसमें? लेट सपोज मुझे हेल्थ इंप्रूव करनी है, ठीक है, तो प्रेजेंट टेंस में लिखेंगे कि मेरी हेल्थ अच्छी हो गई है. आई एम हैविंग ए वेरी गुड डाइजेशन, आई एम हैविंग ए वेरी ग्लोइंग स्किन, हेल्दी बॉडी, हेल्दी माइंड, हेल्दी सोल. जो भी आपके पास चाहिए आएगा आएगा ये नहीं, आपके पास है, ऐसा करके लिखना है. ये चीजें हम गॉड टच में कर सकते हैं. सेल्फ टच में हमें क्या करना होगा? सेल्फ टच वी हैव टू डू ईश्वरीय ऊर्जा, यानी कि एक बार एनर्जी गेन ले ली, गेन की हमने, फिर उस ईश्वरीय ऊर्जा को हमें पचानी है. कहाँ पचाएंगे? अपने अंदर साधना करके. कैसे? सेल्फ हेल्प बुक्स. सेल्फ हेल्प बुक में देयर आर वेरियस बुक्स विच वी कैन फॉलो. वन वन थिंग विच कैन हैपन इज एवरी डे we will also have some recording or maybe live sessions 15 to 20 minutes के, जो भी आप सुन सकते हैं. और मे बी वी विल प्रोवाइड बुक्स लिंक, राइट? मनस्विता, प्रखरता एंड तेजस्विता एक बुक है श्री राम शर्मा आचार्य द्वारा लिखी हुई. हम ये बुक का ये 9 डेज पे स्वाध्याय करेंगे. एंड जो लोग नहीं सुन पाएंगे उनको हम रिकॉर्डेड वीडियोस शेयर कर लेंगे, ठीक है? ये स्वाध्याय रहेगा. फास्टिंग कैसे करनी है? फास्टिंग में आप अलग अलग नियम अपना सकते हो. डिफरेंट, मोस्टली लोग अनियन गार्लिक छोड़ते हैं, नमक भी कुछ लोग छोड़ते हैं, कुछ लोग मीठा छोड़ते हैं. जिनको हेल्थ के कॉम्प्लिकेशन से नमक नहीं छोड़ सकते, वो लोग केवल मीठा छोड़ दें और बाहर का छोड़ दें. और ठीक है, अनियन गार्लिक छोड़ सकते हैं, या फिर कोई एक संकल्प कर लो. कोई एक संकल्प मतलब मीठा छोड़ दिया. कोई एक संकल्प मतलब ये भी हो सकता है कि हम बाहर का नहीं खाएंगे, केवल घर का ही खाएंगे 9 days. अगर आप 2 दिन 2 टाइम का, एक टाइम का फास्ट भी नहीं कर सकते तो दिस इज ऑल्सो कंसिडर्ड फास्ट. फास्ट है क्या? बैरिकेडिंग ऑफ, बैरिकेडिंग फॉर फ्रॉम एनर्जी डेसिपेटिंग. सो मैं आपको एक सिद्धांत समझाता हूँ. सर्दियों में जब हमें सर्दी लगती है, वी फील कोल्ड. क्यों? क्योंकि हमारा एनर्जी, हमारा जो बॉडी है कंटिन्यूसली एनर्जी एमिट करता रहता है.
बट लेकिन हम जैसे ही ब्लैंकेट ओढ़ते हैं तो हमें गर्मी क्यों लग जाती है? जब मैं छोटा था, एट दैट टाइम आई वाज नॉट अवेयर ऑफ द साइंटिफिक फैक्ट ऑफ दिस, सो मुझे ये लगता था कि ब्लैंकेट मुझे गर्मी दे रहा है। बट बड़ा हुआ जब मुझे समझ में आया कि ब्लैंकेट नहीं दे रहा है, ब्लैंकेट इज जस्ट कंजर्विंग द एनर्जी, जो एनर्जी लॉस हो रहा था उसको रोक रहा है। तो सेम वे में हम साधना करके अपनी लॉस ऑफ एनर्जी को रोक सकते हैं। ठीक है ना? आप ये भी कर सकते हैं कि आप कोई एक स्पेसिफिक लैंग्वेज में बोले, कोई एक स्पेसिफिक आवर है जिसमें आप मौन व्रत रख सकते हैं, जैसे सुबह के 6 से 8, या जैसे इवनिंग का 8 से 10, या फिर रात के 10 से, जो सोने का टाइम है वो भी कर सकते हैं कि रात के 10 से सुबह 6 बजे तक मैं नहीं बोलूँ, ये मेरा मौन व्रत का टाइम है। तो उसमें क्या होगा, 6 आवर्स तो आप सो ही जाएंगे, 2 घंटे बचे, वो 2 घंटे आपका डायरी राइटिंग, DOR एक प्रैक्टिस होती है, विच आई विल शेयर। सो इसमें हम लोग आपको बताएंगे। एंड देन वी विल हैव लेवल 2। सो लेवल 2 में क्या करना होगा? लेवल 2 में बस केवल चैंटिंग का टाइम बढ़ जाएगा, बाकी सब चीजें ऑलमोस्ट सेम ही रहेगी, थोड़ा थोड़ा टाइम सेल्फ रीडिंग एंड DOR राइटिंग उसमें बढ़ जाएगा। DOR राइटिंग क्या है? डेली ऑपरेशंस रिव्यू। ये बेसिकली हमने विल पावर रिपोर्ट में भी शेयर किया था। इसमें रोज रोज आपको 3-3 मिनट के शेयर करने हैं, कि 3-3 स्टेप्स शेयर करने हैं। मीन्स 3 अच्छी चीजें क्या हुई, वो चीज आप लिख लीजिए। फिर 3 चीजें क्या प्रॉब्लमेटिक हुई, वो चीजें लिख लीजिए। और उनके लिए क्या एक्शन प्लान है, वो चीज लिख लीजिए। फिर 3 चीजें इंप्रूवमेंट वाली क्या है, वो आप लिख लीजिए। तो एंड 3 नेक्स्ट अगले दिन के क्या टारगेट है, वो आप लिख लीजिए। तो मीन्स 3 3 3 स्टेप्स अपने को लेने हैं, टोटल 9 स्टेप्स। लेवल 3, अगेन इसमें आप चैंटिंग का टाइम बढ़ जाएगा 1 आवर। एंड लेवल 4 में चैंटिंग का टाइम 2.5 आवर। नाउ दिस इज अ प्रेयर। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतम गमय, असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतम गमय। असतो मा सद्गमय मीन्स, हे ईश्वर, हमें असत्य से सत्य की ओर ले जाइए। तमसो मा ज्योतिर्गमय मीन्स, हे ईश्वर, हमें अंधेरे से प्रकाश की तरफ ले जाइए। क्या है अंधेरा? अपनी संभावनाओं को नहीं देख पाना है अंधेरा। अपने पास में जो जो महंगी मूल्यवान प्रतिभाएं छुपी हुई है, उनको निखारना नहीं है अंधेरा। अपने जीवन में सुख और संपत्ति के जो भी अवसर हैं, ये नवरात्रि का जो अमूल्य अवसर है, अगर हम इसको नहीं यूटिलाइज कर पाए तो वो है अंधेरा। तो तमसो माह ज्योतिर्गमय क्या है? अंधेरे से प्रकाश की तरफ। आप देखते हैं ना, अगर कमरे में अंधेरा हो और आपको कोई भी चीज टच कर जाए तो आपको डर लगने लग जाता है, क्या हुआ। एंड देन आपकी स्पीड भी रुक जाती है, एंड आपको अजीब सा महसूस होने लग जाता है। लेकिन वैसे ही लाइट चल जाती है, तब आपको बहुत क्लियर कट नजर आने लग जाती है। वैसे ही जीवन में अंधेरा मीन्स कंफ्यूजन, अनक्लैरिटी, डाउट, सेल्फ डाउट्स, डाउट ऑन अदर्स, है ना? ये अंधेरा है। इनसे दूर जाके हम कैसे जाएंगे? जब हमारे पास सेल्फ अवेयरनेस आएगी। तो तमसो माह ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतम गमय क्या है? मृत्युर्मा अमृतम गमय है, हम जो भी कार्य करते हैं ना, उसको इस भाव से करें कि इसमें लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या है। लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट, डिलेड ग्रेटिफिकेशन। सो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट के अगर नजरिए से हम देखेंगे ना चीजों को, तो इट विल ऑलवेज मेक समथिंग इमोर्टल। यानी कि अगर आप कुछ थॉट्स लिख रहे हैं, तो वो थॉट्स आप ऐसे लिखें कि वो बुक लिख दें। अब बुक लिख दें तो वो इमोर्टल बन जाएगी, आपके थॉट्स हमेशा हमेशा के लिए एक जगह पे कंपाइल हो जाएंगे। सो प्रेयर ये कहती है कि जिस प्रकार द्यूलोक तथा पृथ्वी ना डरते हैं ना दुखी होते हैं, उसी प्रकार है मेरी प्राण शक्ति, तुम भी मत डरो। और आज का ये जो सेशन है, मैं अपने ऋषि युग्म पंडित श्री राम शर्माचार्य और श्रीमती भगवती देवी शर्मा जी के चरणों में समर्पित करता हूँ, और उनके लिए एक प्रेयर करता हूँ। हरने को अज्ञान ज्ञान की ज्योति अखंड जलाई, ऊपर लाने स्वर्गीय योजना योग निर्माण चलाई, ज्ञान यज्ञ के लिए समर्पित जीवन जिनका सारा, उन सदगुरु श्री रामचरण में विनम्र प्रणाम हमारा।
विनम्र प्रणाम एंड दिस इज नाउ Q&A सेशन। सो अभी मैं अनम्यूट करता हूँ आप लोगों को। आप लोग वीडियो भी ओपन कर सकते हैं एंड हम Q&A करते हैं। प्रणाम। सो सुधीर जी, मेरे साथ में नवरात्रि नहीं, दिसंबर में 8 से 15 दिसंबर में रूम पार्टनर है। एंड हमारे साथ राजीव जी हैं, नमित भैया हैं, and लक्ष्मी जी हैं। सो किसी का कोई सवाल है तो पूछ लीजिए। सुधीर जी, कैसा लगा आपको ये सेशन? आप अनम्यूट करके बताइए। आप म्यूट है, अनम्यूट करना पड़ेगा आपको। आज तो अनम्यूट सुधीर जी, आप म्यूटेड है। हाँ, अब आवाज आएगी। आवाज आई। हाँ, हाँ जी, हाँ नमस्कार जी, बहुत अच्छा लगा। हाँ, पर तो मैं अभी बहुत लेट जुड़ा हूँ आपसे। मैंने आपका आखिरी क्या केवल 10 मिनट का सेशन देखा। हाँ, पर ठीक है। तो मैं सुन के रिकॉर्डिंग बहुत अच्छा लगा। रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा। रिकॉर्डिंग है? हाँ हाँ, पर रिकॉर्डिंग है। हाँ जी जी। एंड इस सेशन हाँ, का भेजिए। मुख्य उद्देश्य था, देखिए, जो लोग स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हुए हैं वो लोग तो नवरात्रि का महत्व जानते हैं और 2-2 3-3 घंटे की साधना करते हैं। बट जो लोग नहीं जुड़े हुए हैं उनके लिए, जो कॉर्पोरेट में है, जो नवरात्रि जिनके लिए नॉर्मल डेज की तरीके से होती है, तो वो नवरात्रि का लाभ मैक्सिमम कैसे उठा पाए, इसीलिए हमने ये सेशन रिकॉर्ड किया है। बहुत अच्छा कर रहे हो हरी जी। हाँ, मतलब आपको तो वास्तव में कहाँ कहाँ से प्रेरणा मिलती रहती है। हाँ, मतलब जो आपके साथ में रहा वहां पर वो वाली चीजें मेरी मेमोरीज में बहुत अच्छी हैं। हाँ, जो जो आप बोलते थे ना कि ये जो मेरे पास अपने पास आ रहा है वो कहीं ना कहीं से रिकॉर्डेड रिकॉर्डेड है, वो हमारे पास आ रहा है। मेरे को ये वाले आपका जो आपने बताया था वो हमेशा याद आता रहता है। जी जी जी, एक्चुअली क्या होता है, हमारा जो मस्तिष्क है ना, ये एक ऑडियो ऑडियो रिकॉर्डिंग का काम करता है, और ये मस्तिष्क डाटा डाउनलोड भी करता है। जैसे अपलोड डाउनलोड होता है, तो मस्तिष्क का क्लाउड और एक आसमान में क्लाउड, कॉस्मिक क्लाउड, ये दोनों जुड़े हुए हैं आपस में। हम वहां से डाटा डाउनलोड भी कर सकते हैं, हम वहां डाटा अपलोड भी कर सकते हैं। इसीलिए कहा गया ना, एक व्यक्ति अगर चाहे तो अपने आप को इस लेवल पे बढ़ा सकता है कि सारी दुनिया पे इम्पैक्ट ला सकता है। आज आप कहाँ से बात कर रहे हैं? आप मैं हैं अपने, कहाँ? जी, घर घर पालनपुर, गुजरात। पालनपुर है, मतलब वहां पर है। और वर्तमान में पोस्टेड हाँ, आप अभी आप भोपाल आए साथ? आप भोपाल में हैं कि मुंबई पहुंच गए? नहीं नहीं, मैं पालनपुर से, घर से ही मैंने, आई हैव स्टार्टेड डूइंग माय कंसल्टिंग, कंसल्टेंसी चालू कर दी। तो वो छोड़ दिया हाँ जिस हाँ, जॉब में थे? वो 1 मिनट में रिकॉर्डिंग ऑन करता हूँ, देन आई विल शेयर इट। हाँ ठीक ठीक। जी। 7 मिनट और बात किसी की, करेंगे। हाँ, नमस्ते दीदी, प्रणाम। आप आप म्यूटेड हैं दीदी, म्यूटेड है, म्यूट, मैं अनम्यूट करने के लिए बोल रहा हूँ। हाँ, हाँ, म्यू- हो गया अभी। हाँ जी जी, अभी आई वॉइस। हाँ हाँ हाँ। प्रणाम। बहुत सो अच्छा लगा। आप हाँ, तो आई खुश थिंक रहो लेट आए या खुश रहो। पहले ही आ गए थे आप? नहीं, हम थोड़ा लेट हमने ज्वाइन किया है। तो मैं रिकॉर्डिंग सेशन कर लूंगा। और मेरा इस बार ये हाँ सोच है कि पूरे 9 के 9 दिन हम श्री राम शर्माचार्य जी का एक वाङ्मय है ना, मनस्विता, प्रखरता और हाँ तेजस्विता, उसका हाँ, 20-25 मिनट्स डेली स्वाध्याय करेंगे। तो बिल्कुल बिल्कुल। और वो स्वाध्याय साथ में करने का बड़ा आनंद है, एंड दैट विल एक्चुअली हेल्प अ लॉट। तो वो वही संकल्प लिया है कि हाँ, 9 दिन बिल्कुल बिल्कुल। स्वाध्याय सामूहिक करेंगे। बिल्कुल, बहुत नवरात्रों में तो स्वाध्याय का एक अलग ही महत्व है। जी, हाँ, बहुत अच्छा आरंभ कर रहे हो। थैंक यू सो मच। हाँ सो और किसी का कोई हाँ क्वेरी है ये बेसिकली सेशन का मेन उद्देश्य हमारा ये था कि जो लोग स्पिरिचुअलिटी से ज्यादा नहीं जुड़े, जिनको नवरात्रि के बारे में नहीं पता है, उनको थोड़ा बताया जाए। और जिनके पास टाइम कम है और मन में ये रहता है कि हम तो अनुष्ठान नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए छोटे छोटे 5 लेवल के सेशंस, अनुष्ठान बनाए, ये लेवल बनाए। मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए, हम्म। 1 मिनट स्क्रीन, ये देखिए, 4 लेवल्स के डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स हमने डेवलप किए। लेवल 1 केवल 15 मिनट हम्म। का है। इसमें 15 मिनट में एक माला करनी है, 10 मिनट स्वाध्याय करना है और 5 मिनट डायरी लिखनी है। तो ये 15 मिनट भी जो कर लेगा ना,
उसको कम से कम न्यूनतम मिनिमम वो मिल ही जाएगा, ईश्वरीय अनुदान वरदान 9 दिन में। और अगर नेक्स्ट लेवल है 60 मिनट का, जिसमें 30 मिनट चैंटिंग करनी है, बाकी स्वाध्याय करना है और डायरी लिखनी। और अगला लेवल है 120 मिनट्स का, जिसमें कि 11 माला करनी है और रिमेनिंग में स्वाध्याय और डायरी। और उससे चौथा लेवल है अपना पूरा जो पूर्ण लघु अनुष्ठान होता है गायत्री महाविज्ञान के अनुसार, श्री राम शर्मा हाँ जी ने बताया। हाँ हाँ हाँ। उसमें 27 माला रोज करनी है अपने को, 2.5 घंटे में हो जाती है। और हम्म। जिसमें हमें चैंटिंग करनी है, चैंटिंग के अलावा आधा घंटा स्वाध्याय करना है, फास्टिंग करनी है, और डेली अधिक से अधिक लिखना है। एक चीज नई जोड़ी है मैंने, वो ये है कि हमें डायरी बहुत लिखनी है। ये 9 दिनों में जो ये भी डायरी लिखना क्या है? डायरी लिखने डायरी लिखना मतलब? डायरी लिखने का मतलब ये है, आप अपना भविष्य लिखो। आप अपना, अपने बच्चों का, जो भी आप बदलना चाहते हो जिंदगी में, वो सब लिखना, प्रेजेंट टेंस में लिखना चालू कर दो। हम्म। जैसे मुझे श्री राम शर्माचार्य जी के विचार को लाखों लोगों तक पहुंचाना है ना। एक ऐसा प्रक्रम बनाना है हमें कि हम इन विचारों को, जो जो कि हमारे हरिद्वार में जो ऋषिकेश में बात हुई थी ना, कि हिमालय का दलिया, हाँ हाँ यानी वो दलिया जो है हाँ। सुपाच्य रूप में और स्वादिष्ट बना के उसको लोगों तक देने के लिए हम लोग प्रयास करेंगे। तो वो मुझे नहीं बिल्कुल। लिखना है कि करूंगा करूंगा, मुझे ये लिखना है कि मैंने ये पुस्तक का कर लिया है, इतने लोगों तक ये पहुंच गई है। प्रेजेंट टेंस में हमें बातें लिखनी है। नवरात्रि में जो लिखी हुई चीजें होती है ना, उसके होने की संभावना बढ़ जाती है। आपका मान लो आपके नवरात्र में, नवरात्र में हम लोग जो ये करेंगे अनुष्ठान, तो किस मंत्र का कर रहे हैं इस पर क्या होगा? मंत्र तो और देखिए, मंत्र में बताता हूँ, मंत्र एक वाहन है। वाहन मतलब अगर आपको यहाँ से दिल्ली जाना है, तो आप मोटरसाइकिल से भी जा सकते हैं, कार से भी जा सकते हैं, ट्रेन से भी जा सकते हैं, फ्लाइट से भी जा सकते हैं, ठीक है। हर एक साधन उसका पहुंचाएगा वहीं पर ही। और जिसका जो हम्म मंत्र, जिसका, अब एक मंत्र एरोप्लेन होता है, एक ट्रेन होता है, एक बस होता है, एक एक ना बैलगाड़ी होता है। तो कोई हम्म। सा भी मंत्र एरोप्लेन बन सकता है, अगर आपकी उसमें स्वाध्याय मतलब आप में श्रद्धा विश्वास है। कोई सा भी मंत्र। हाँ जैसे, हाँ कोई जो भी आपका मंत्र हो उसी मंत्र का हाँ, को जो आरंभ जैसे करना। अपने गुरु जी भी ना, दिनेश जी भी अपने किसी को भी मंत्र चेंज नहीं करवाते, वैसे हम लोग भी किसी को नहीं मंत्र नहीं। हाँ बदलने के लिए नहीं। जिसका जो हाँ जिस मंत्र पे श्रद्धा और विश्वास है और आस्था टिकी हुई है, हाँ वो उसी मंत्र को करे, क्योंकि उसके लिए वही हाँ। मंत्र हवाई जहाज का काम करे। हो बिल्कुल सकता है बिल्कुल। दूसरे के लिए दूसरा मंत्र हवाई जहाज है, लेकिन उसके लिए वो बैलगाड़ी बन जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें आस्था विश्वास का ही इंजन और ईंधन लगता है। उसी ईंधन से हाँ। ये मंत्र प्राणित होता है और चलता है। इसमें एक और बात कहता हूँ, जैसे मूर्तियों में प्राण प्रतिष्ठा होती है ना, अपना प्राण प्राण हम्म। प्राणाकर्षण पुस्तक में गुरुजी ने बताया था कि जब तक हम्म। प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती है, वो मूर्ति साधारण पत्थर होती है। बट जैसे ही प्राण प्रतिष्ठा कर देते हैं हम लोग, वो मूर्ति सजीव, हमें अनुदान वरदान देने लग जाती है। उसी तरीके से मंत्र में भी हम्म क्या होता है, श्रद्धा और विश्वास से प्राण आता है। जिस मंत्र में आपकी श्रद्धा विश्वास है ना, जैसे मेरी गायत्री में श्रद्धा है, तो गायत्री मंत्र हम्म। मेरे लिए एरोप्लेन का काम करेगा। किसी को ओम नमः शिवाय में हो सकती है श्रद्धा, तो उनके लिए वो ओम नमः शिवाय प्लेन बनेगा। उनके लिए गायत्री हाँ। रेलगाड़ी का काम करेगी, या फिर बस का करेगी, या फिर अगर बिल्कुल श्रद्धा नहीं है तो वो कुछ और बहुत बहुत स्पीड स्लो भी हो सकती है, साइकिल भी चल सकती है। मंत्र एक्चुअली हमारे, मंत्र चाहे कोई भी हो जो हमारे विश्वास पर उतरता हो, किसी भी मंत्र का काम एक ही है कि वो हमें कॉस्मिक एनर्जी से हमें जोड़ देती है। एक और इसमें हमने चीज बोली है बीना दीदी, कि अगर मान लो कोई हिंदू धर्म से नहीं है और उनको मंत्र मंत्र वाला ये चीज नहीं, कॉन्सेप्ट समझ में आता, तो उनके लिए भी अनुष्ठान सुलभ है, संभव है। क्योंकि ये रिकॉर्डिंग में यूट्यूब पे डालूंगा, इसीलिए बता रहा हूँ। कोई मुस्लिम धर्म से है या दूसरे क्रिश्चियन है, जिनको गायत्री मंत्र और इनमें सुविधा नहीं है, तो वो लोग अपने लिए उज्जवल भविष्य की प्रेयर लिखना चालू कर दे। हे ईश्वर, ओ गॉड, प्लीज गाइड मी टू द राइट पाथ, मेरा फ्यूचर इंप्रूव करो, ऐसे करके भी लिखेंगे ना, वो भी मंत्र का ही लाभ देगा। क्योंकि गायत्री मंत्र बिल्कुल भी क्या है, उज्जवल भविष्य की कामना है ना। हे ईश्वर, आओ मुझे बिल्कुल। सही मार्ग पे पटक दो, ले जाके सही मार्ग पे लेके चलो। तो ये जो राइटिंग में भी लिखेंगे ना, उनको भी गायत्री मंत्र का ही लाभ मिलेगा। क्योंकि मंत्र में और बिल्कुल। उपासना में और साधना में हर जगह। ओके राजीव जी, हम्म राजीव जी कुछ आप कहना चाहते हैं? राजीव जी ड्रॉप कर गए, ठीक है। हम्म। तो मेनली यही है, मंत्र नहीं, ना भी अच्छा, हो। बहुत अच्छा। हाँ बहुत अच्छा संकल्प लेकर चले हो।
और बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको ये पता ही नहीं है। हाँ, इसी के लिए हम लोग इसको यूट्यूब पे डालने वाले हैं, स्टेटस पे हाँ, डालने वाले हैं, हर जगह पे इसको स्प्रेड करेंगे। नवरात्र जो है ना, इतने नवरात्र के 9 दिन इतने शक्तिशाली ये 9 दिन होते हैं कि इन दिनों में प्राप्त करने वाले अगर जरा सा थोड़ा सा भी, तो बहुत सुंदर तुमने बनाया है कि ये मतलब कुछ समय, छोटे समय में भी लोग अपने आप को उसका लाभ ले सके, ताकि 1 दिन का भी है, 2 दिन का भी, 1 घंटे का, 15 मिनट का, हर तरह का अगर उपस्थित होगा तो अपने सुविधा अनुसार लोग उसको कर पाएंगे। बहुत अच्छा बनाया ये तो। जी जी। तो इसकी रिकॉर्डिंग हम लोग शेयर कर लेंगे, आप लोग भी बाकी लोगों को शेयर करिएगा। मेनली जो अपने नॉन जीपी या फिर जो ज्यादा स्पिरिचुअलिटी से नहीं कनेक्टेड है ना, उन लोगों के लिए बहुत लाभदायक होगा। क्योंकि जो लोग अध्यात्म से हम्म। जुड़े हुए हैं उनको तो नवरात्रि का महत्व पता है, तो वो लोग तो करते ही, कुछ ना हम्म। कुछ हर कोई करते ही है। हम्म। जैसे अपने यहाँ अष्टमी पूजते हैं लोग, कन्या हाँ। जिमाते हैं, सब लोग अपने यहाँ कुछ ना कुछ करते ही हैं। हाँ, 9 दिन, ये 9 दिन कहा जाता है कि ये 9 दिन खाली नहीं जाने चाहिए, बहुत इतने महत्वपूर्ण हैं कि बाकी दिन तो हम गंवा देते हैं, ये 9 दिनों में बटोरने के दिन होते हैं। इसमें पूरे वर्ष भर की ऊर्जाएं बटोर ले सकते हैं हम लोग। कहते हैं ना, आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि बहुत सारा कुछ कुछ समय होता है, जैसे दिवाली का टाइम है बिजनेसमैन के लिए, फेस्टिवल का टाइम है बिजनेसमैन के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट टाइम होता है। जो बिजनेसमैन उस टाइम पे आराम से वेकेशन पे चला जाए, उसके लिए 6 महीने बेकार गए, राइट। तो सेम हम्म। वे में हम्म। स्पिरिचुअल लोग जो भी हैं, जिनको एनर्जी का थोड़ा सा भी पता है, उन सब लोगों के लिए ये फेस्टिवल एक एनर्जी गेनिंग का टाइम है। ये एक हाईली बिल्कुल। हाँ। हाईली प्रोपिशियस टाइम है। और इसका उद्देश्य होता क्यों है ये? क्योंकि जो नवग्रह है, हमारे नवग्रहों की परिस्थितियां नवरात्रि के टाइम पे ऐसी बन जाती है। अभी आपको पता है कि ग्रह कैसे टिके हुए हैं, ग्रह एक व्यवस्था से जुड़े हुए हैं ना, सूर्य के से साथ हम्म। धागे से बंधे हुए हैं। देन वो ग्रह आपस में भी एक दूसरे को G m1 m2/r² के फोर्स से जुड़े हुए हैं। M है हमारा मास, हम्म। M2 है दूसरी का मास, R है उनके बीच की रेडियस, और G है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो ये सब सृष्टि जो सिद्धांत से टिकी हुई है। इस समय नवरात्रि के टाइम पे साल में 2 बार ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि इस टाइम पे जितनी भी स्पिरिचुअल एनर्जी फ्लो होता है ना, वो हमारी धरती की तरफ हम्म। हाईएस्ट रहता है। तो वो स्पिरिचुअल एनर्जी फ्लो है, हाईएस्ट है। अगर वो बहुत ज्यादा आ रहा है तो हमने बर्तन ऐसे रखा हुआ है तो हम पे आ जाएगा, हमारा बर्तन ऐसे है तो नहीं आएगा। इसीलिए कहते हैं कि नवरात्रि हम्म। का महत्व है, अपना बर्तन सीधा करके रखें और उसमें मैक्सिमम एनर्जी अच्छा। गेन कर लें, जिससे कि ये कमाई हम अगले 6 महीने में प्रयोग कर पाए। लाइफ इज नथिंग बट एनर्जी। इसमें एक और चीज बताऊंगा, E = mc²। एनर्जी जो आइंस्टीन जी कह गए ना, एनर्जी इज कन्वर्टेबल टू मास एंड मास इज कन्वर्टेबल टू एनर्जी। जो कि बाद में परमाणु बम वगैरह में सिद्धांत में पता भी चल गया कि मास, छोटे से मास को बदल के हम एनर्जी कर लेते हैं और एनर्जी से मास बना सकते हैं। तो एनर्जी से मास भले हम्म। बने ना, लेकिन मास से एनर्जी तो सिद्ध हो ही गई है। और एनर्जी से मास बनने का जो पहले का सिद्धांत था ना, लोग प्रकट हो जाते थे, कहीं से भी कहीं चले जाते थे, तो वो इन्होंने E = mc² को सिद्ध कर दिया था पूर्व जन्मों में ऋषियों ने। तो सेम वे में हम्म। अगर वो नहीं भी हो सकता है उस वे में, तो एटलीस्ट ये भी हो सकता है कि एनर्जी जो है वो धीरे धीरे हमारे जीवन में परिस्थितियां बदल सकती है, हमारे जीवन की जो बिल्कुल। हाँ। दशा है उसको बदल सकती है। और वो एनर्जी को हम लोग ये 9 दिनों में अधिक से अधिक गेन कर सकते हैं। जिसकी जितनी भाव होगी, जिसकी जितनी धारणा होगी, उतना ही वो ये एनर्जी गेन कर पाएगा 9 दिनों। इसमें अपन प्राणाकर्षण भी अपने को करना चाहिए, प्राण संचय भी करना चाहिए। अभी जो जो लोग प्राणाकर्षण प्रथम कर रहे हैं, उनको प्राण संचय के लिए कहा हम्म। गया है। तो हम लोग प्राण संचय कर रहे हैं अभी, जो हमारा 40 लोगों का बैच है। प्राण का तो अभी जो चल रहा है, अगला लेवल जो चल रहा है, लेवल 2, उसमें मतलब हम लोग हैं। और अभी तो मेरा इतना अच्छा आ गया है रिजल्ट कि अभी मेरा एक लेवल और हाई हम हो गए अभी उसमें। आज गुरु जी ने उसको एक क्लास और आगे बढ़ा दिया है। और बहुत बेहतर, हमें अपनी ऊर्जाओं को अपने मन अनुसार, इच्छा अनुसार कहाँ उसे प्रयोग करना है, कहाँ पहुंचाना है, उसका रिजल्ट भी दिखने लगा है। इतना हाँ बढ़िया ये चीजें हैं, लेकिन लोगों को पता नहीं है कि हमारे अंदर ही ये ऊर्जा का भंडार है और उसका हम प्रयोग कर सकते हैं। सिर्फ हमें रास्ता नहीं पता है। और तुम बहुत अच्छे गाइड हो, तुम अगर किसी को गाइड करोगे तो निश्चित रूप से उसे वो मार्ग मिलेगा जो से वो अपनी ऊर्जाओं को अनुभव कर सके और अपनी ऊर्जाओं को अपने मतलब पता है शुभ शुभ मार्ग पर उसको लगा सके। मैंने एक चीज और भी देखी है, जितना आजकल प्रॉब्लम्स हो रही है ना, क्राइम हो रहा है और जितनी भी सिचुएशंस हो रही है, वो सब ऊर्जा डिप्लीशन के कारण ही हो रहा है। जब आदमी ऊर्जा से रहित हो जाता बिल्कुल। है, बहुत कम हो जाता है, तब वो
इस तरीके की चीजों में लगता है, जिसमें डिप्रेशन, डिमोटिवेशन, स्ट्रेस, ये सारी हाँ, चीजें। मन अगर मन कमजोर हो जाता है। पॉजिटिव एनर्जी रहे अपने अंदर, डिवाइन एनर्जी रहे, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि उस व्यक्ति से गलत काम हो, उस व्यक्ति की बुद्धि सही ना काम करे, उसको उससे कोई उल्टा सीधा काम हो जाए, क्योंकि डिवाइन एनर्जी आपके लिए एक डिवाइन बांध बनाती है, जो आपको गलत जगह पे जाने ही नहीं देती। वो आपको पकड़ के हाँ, सही जगह पे पटक देती है जबरदस्ती। बिल्कुल। हाँ, ठीक है, तो हम लोग डिवाइन एनर्जी का भी, एक डिवाइन इंटेलिजेंस का भी एक कोर्स डेवलप कर रहे हैं। तो वो जैसे ही डेवलप हो जाता है, तो आई थिंक नवरात्रि की बात करेंगे, तब हम लोग वो भी लॉन्च करेंगे। हाँ, बिल्कुल। बहुत बहुत अच्छा। बहुत ठीक है। आशीर्वाद, और बहुत तुम्हारा ये ज्ञान जो है वो औरों औरों तक पहुंचे, लोग जुड़े और इसका लाभ उठाएं। थैंक यू सो मच, आपने समय दिया, आपने ज्वाइन किया, उत्साहवर्धन किया। सुधीर सर मेरे रूम पार्टनर हैं वहाँ के, ऋषिकेश अच्छा, के। अच्छा, हमने अच्छा, अच्छा, अच्छा। हमने काफी चर्चाएं करी हैं, मतलब गहन चर्चाएं। रोज रात को हाँ, जो 15-20 मिनट बात होती थी ना, वो सबसे इम्पोर्टेंट हाँ, लेसन्स होते थे हमारे। हाँ, बहुत बहुत बढ़िया। गुरु जी से मिलने के बाद तो जीवन को दिशा और दशा न हो बने, तब तो व्यर्थ है जुड़ना। ना जुड़ने के बाद तो निश्चित है कि जीवन अपने दिशा को प्राप्त करता है। जी। सो आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, एंड बहुत बहुत आभार। And कल हम वापस मिलेंगे 9 बजे, स्वाध्याय मनस्विता, प्रखरता, तेजस्विता। अगर नहीं सुन पाए आप स्वाध्याय, तो मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, आप खाली टाइम पे दिन में कभी भी सुन लीजिएगा, ठीक है। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। ओके, 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 ठीक है। थैंक यू सो मच, प्रणाम। प्रणाम।